let us talk about the next topic, that is family planning or contraception. बेटा फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्शन इट इज अ टॉपिक जो ऑब्स गाइनी मिडवाइफरी के अंदर काफी हद तक वो करवाया जाएगा. सो उधर पे यू विल बी डूइंग all these topics much in detail and इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या कहाँ से करना है. एक मिनट. Family planning or contraception, beta, it is one topic which will be dealt much in detail in obs and gynae and in midwifery as well. So मैं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको याद करनी है, जो आपको समझनी है, वो चीजें हम बात करेंगे. फैमिली प्लानिंग का जो नेशनल प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एमसीक्यू नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एनएफपीपी. एनएफपीपी इंडिया में किस नाम से चलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिशन परिवार विकास. इट इज बाय द नेम ऑफ मिशन परिवार विकास. जैसे मिशन इंद्रधनुष आपने सुना होगा, मिशन इंद्रधनुष दैट इज फॉर इम्यूनाइजेशन, मिशन परिवार विकास इज फॉर द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. नेक्स्ट सवाल, इस नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के टारगेट्स हमने ऑलरेडी वी हैव डन द टारगेट्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज कपल प्रोटेक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड reproduction rate. It should be 1, 2.1 and 60%. More than 60%, less than 2.1, equal to 1. ये हमारे टारगेट्स हैं फॉर द मिशन परिवार विकास. पॉइंट नंबर 3, इस मिशन परिवार विकास या नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर there are some definitions. What do we mean by eligible couple? Eligible couple वो already आपने करा. And what do we mean by a target couple? What is eligible couple and what is a target couple? Eligible couple कौन है, ये अभी आपने बात किया. Who is eligible couple? Eligible couple is a couple who is eligible for reproduction, in which the female is in women of reproductive age group. That's what we have already done. What is a target couple? Target couple कौन होता है? ये target couple कौन है? Very nice, Rakib. Target couple is a couple who has completed family, and ये and बड़ा जरूरी है, and has at least one live child. It is a couple who has completed family and has at least one live child. दो जरूरी नहीं है, it's at least one live child and should have completed family. इस कहानी को हम कहते हैं टारगेट कपल. तो सवाल आता है, कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग हम किसको देते हैं? एलिजिबल कपल को या टारगेट कपल को? कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग इज गिवन टू, लिखो चैट बॉक्स में, कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग इज गिवन टू एलिजिबल कपल और टारगेट कपल. क्या बोलना चाहते हो? Contraception is given to, contraception will be given to, it is given to eligible couples. Very nice. Contraception is given to eligible couple, not to target couple. Target couples को क्या देना है? Contraception की जगह we give them sterilization, or the permanent methods is given to. Sterilization is for target couple, contraception is for eligible couples. Point number 4, what do we mean by a planned family? What do we mean by a planned family? Planned family कौन सी family होती है? What is a planned family? What is a planned family? Planned family is a family जिसमें planning हुई हो, जिसमें the first child is after dash years of marriage. कितने years of marriage? The first child is after how many years? 1 year or 2 year or 3 years? It is the first child is after 2 years of marriage, more than 2 years of marriage. And the second child is after dash years of first child. So कितना gap होना चाहिए? It is after 3 years. More than 3 years gap
between the first and the second child. The first child is after 2 years of marriage, second child is after 5 years of marriage, yeah, at least after 3 years of the first child. And third point, they should adopt, the couple adopts sterilization method after 2 live children. After 2 live children, the couple will adopt sterilization method or permanent methods. अगर ये तीनों चीजें होती हैं, then that family is called as a planned family. So अगर ये तीनों चीजें होती हैं, that is called as a planned family. So what is eligible couple? Eligible couple is contraception, where we are talking about females in reproductive age group. Eligible couple. Target couple, completed family and has at least 1 live child. What is a planned family? First child is after 2 years, after 3 years, or adopts permanent methods of family planning after 2 children. Point number 5. 4 points कर लिए. Point number 5. What are the methods to assess the failure rate? How do you assess the failure rate of contraception? How do you assess the failure rate of contraception? The failure rate can be assessed using 2 methods. We can use a life table analysis, or we can also use what is called as Pearl's index. Very nice. We can also use the Pearl's index. क्या बोलना चाहते हो? Which of the following is the best method for assessing the failure rate? Which is the best method? Life table or Pearl's index? Which is the best method to assess failure rate? It is life table analysis is the best way to assess the failure rate. It is not Pearl's index. Pearl's index is the most commonly used index. Most commonly used index is the Pearl's index. How do we calculate Pearl's index? कैसे calculate कैसे करते हैं? Calculate Pearl's index. Calculation of Pearl's index. What is the formula for Pearl's index? It is given by the formula number of accidental pregnancies. It is given by the formula number of accidental pregnancies divided by क्या बोलोगे? Total women years of exposure multiplied by कितने के साथ करना है? multiplied by 100 और 1200 और 1000. क्या बोलना चाहते हो? Multiplied by 1200 और 100. It is 100 बेटा. It is multiplied by 100. अगर एग्जामिनर बहुत तेज हो जाए और एग्जामिनर बोले कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज डिवाइडेड बाय द वुमेन मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, अगर यहाँ पे मंथ्स डाल दे तो फिर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटू 12 हो जाएगा ना ये, तो आंसर आएगा 1200. बट जनरली स्पीकिंग व्हाट इज द बेस्ट आंसर यू गोइंग टू मार्क? इट इज ईयर्स आएगा, तो ईयर्स आएगा तो 100 करना है. अगर उन्होंने नंबर ऑफ वुमेन मंथ्स बोला तो 1200 करना है. तो बट जनरली टॉकिंग फॉर्मूला में हम 1200 ही लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर में वुमेन मंथ्स आएगा. नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज डिवाइड बाय वुमेन मंथ्स ऑफ एक्सपोजर इनटू 1200. तो ये इसका पर्ल्स इंडेक्स होता है. पर्ल्स इंडेक्स बताता क्या है? इट टेल्स अस कि कितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होंगी, अंदाजन कितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होंगी. तो कहा जाता है कि पर्ल्स इंडेक्स, ध्यान से सुनना, अगर इफ कहा जाता है इफ द पर्ल्स इंडेक्स इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है? इफ द पर्ल्स इंडेक्स इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंदाजन हम लेते हैं कि पूरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 इयर्स का है. सो अगर पर्ल्स इंडेक्स 10 आ जाए, so that means what? That means that there will be approximately 2.5 accidental pregnancies. There will be 2.5 accidental pregnancies within 25 years of reproductive age group. अगर वो फीमेल वही कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रही है, if the Pearls index is 10, that means if the Pearls index is 10, that means there is 2.5 accidental pregnancies within 25 years of the reproductive age group, right? So no voice कैसे लिख सकते हो आप?
2.5 कहाँ से आया है, वो कहाँ से आया नहीं होता, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 25 साल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है तो ये ऐसे ही लेते हैं बेटा। 25 इयर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर है तो उसमें से 10 अगर फेलियर रेट है तो मतलब 2.5 एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होगा 25 इयर्स में। ये आपको याद करना पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट। 10 है ना यार, ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज 10 हो गई ना, इफ द पल्स इंडेक्स इज 10। इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पर्ल्स इंडेक्स 10 का, ये मैंने लिखा है पर्ल्स इंडेक्स 10 होगा। तो अगर 35 साल रिप्रोडक्टिव है तो 3.5 एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होगी। अगर 25 साल एक्सीडेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप टोटल एज है 25 इयर्स की, तो 25 साल में वो 2.5 एक्सीडेंटल, ये इसका मतलब होता है 10, पर्ल्स इंडेक्स 10 का। तो 10 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं 10 को। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो पर्ल्स इंडेक्स कितना होता है? पर्ल्स इंडेक्स बेटा, पर्ल्स इंडेक्स यूजुअली कहा है कॉन्डम्स का या बैरियर मेथड्स का। पर्ल्स इंडेक्स ऑफ कॉन्डम्स और बैरियर मेथड्स दैट इज रफली अराउंड 2 to 20 per 100 women years, HWY per 100 women years, per 100 women years कॉन्डम का 2 to 20 होता है। जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है इसका रफली अराउंड 1.5 तक होता है। इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.7 to 1.5 per 100 women years. OC pills is less than 0.1 per 100 women years, per 100 women years. And implants का बेटा implant is less than 0.05 per 100 women years. So per 100 women years. So ये जरूरी है याद करना that which contraceptive has the lowest failure rate. Lowest failure rate बेटा implants का होता है। लोएस्ट फेलियर रेट बेटा इम्प्लांट का होता है। बट सरकारी प्रोग्राम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में वी डोंट हैव इम्प्लांट्स। सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में विच कॉन्ट्रासेप्टिव विल हैव द लोएस्ट फेलियर रेट? इट इज ओसी पिल्स। लगता है कि आईयूडीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव बट ओसी पिल्स आर मोस्ट इफेक्टिव, आईयूडी नहीं है। इट इज ओसी पिल्स विच आर मोर इफेक्टिव देन आईयूडीज। So ये याद रखना about Pearls index. Pearls index, how do we calculate Pearls index? It is given by the formula number of accidental pregnancies divided by women years of exposure into 100 या फिर months of exposure into 1200. Pearls index 10 है तो इसका मतलब क्या है, और Pearls index आपको कितना कितना याद रखना है एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। What does women years of exposure, ये कई दफा ना न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने को भी आता है, बड़ा इजी होता है बेटा ये कैलकुलेट करना न्यूमेरिकल को। कि पर्ल्स इंडेक्स बेटा ये कई दफा न्यूमेरिकल भी आता है कैलकुलेट, इयर्स ऑफ एक्सपोजर क्या होता है। सो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, लेट अस से वी गिव यू अ क्वेश्चन दैट देयर वर 5 accidental pregnancies among 200 females who used a new injectable contraceptive for maybe 18 months. So 5 accidental pregnancies थी among 200 females who used a new contraceptive injectable for 18 months. Calculate the Pearls index. तो सिंपल सा है, Pearls index कैसे होगा? Number of accidental pregnancies divided by total females into months of exposure into 1200, ये होगा इसका आंसर। सो कितना आंसर होएगा? एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज कितनी आ गई? ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल्स। टोटल फीमेल्स कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 200, बिकॉज ये 200 थी ना टोटल फीमेल्स।
200 थी फीमेल्स, और टोटल फीमेल्स 200 आ गई। मंथ्स ऑफ एक्सपोजर कितना आएगा? मंथ्स ऑफ एक्सपोजर आया 18 मंथ्स, सो इनटू 18 multiplied by 1200 multiplied by 1200, so what will be the answer? 5 over 00, so जो भी आंसर है it is pretty simple, so 5 आंसर जो भी मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने तो वैसे ही नंबर बताया था। सो आंसर विल बी लाइक 12 पंजे 60, 60 ओवर 18 टू 36, ये कुछ नंबर बनेगा। 60 by 36 वट एवर इज द पर्ल्स इंडेक्स, ये आएगा। इसका पर्ल्स इंडेक्स 16 पॉइंट समथिंग या 16.6, ये इसका पर्ल्स इंडेक्स आएगा। मैंने वैसे ही आपके लिए एमसीक्यू बनाया, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन याद रखना, अगर विमेन मंथ्स लगा रहे हो तो 1200 करोगे, अगर years में कन्वर्ट कर रहे हो तो देन यू डू 100, वेरी सिंपल। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन दैट 5 एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, 200 फीमेल्स जिन्होंने 18 मंथ्स के लिए यूज किया, व्हाट इज द पर्ल्स इंडेक्स, ये इसका पर्ल्स इंडेक्स है। सो दैट इज व्हाट वी जनरली यूज पर्ल्स इंडेक्स टू फाइंड आउट द फेलियर रेट। Next topic is, what are the different methods of contraception? Point number 6, what are the contraceptive methods? Family planning methods. Methods for family planning. 30 कैसे आया? ये करना पड़ेगा मुझे भी कैलकुलेट ना। सिक्सटी डिवाइडेड बाय 36, 1.6 आया। इट्स नॉट 16.6, इट इज 1.66, ये आंसर आएगा, बस दैट्स इट, 1.66। ओके, ठीक है बेटा, इट्स नॉट 16.6 या जो भी है, 1.66 इसका आंसर आ गया, राइट? सो दैट इज द फेलियर रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर thing. Coming over to the next one, what are the family planning methods? What are the family planning methods? Beta, family planning methods बच्चे दो किस्म का हो सकता है. We can have temporary methods or we can have permanent methods. We can have temporary methods or permanent methods. ये family planning methods बेटा most of it 80% ऑब्जन गाइनी एंड मिडवाइफरी में कवर होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट मेजर सरकारी प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो टेम्पररी मेथड्स में अगर आप बात करें, वी हैव बैरियर मेथड्स, वी ऑल्सो हैव ओसिपिल्स, वी हैव इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, वी हैव अंतरा इंजेक्शंस और इंजेक्टेबल्स, देन वी ऑल्सो हैव इंजेक्टेबल्स। एक और होते हैं इम्प्लांट्स, ये हमारे पास सरकारी प्रोग्राम में नहीं है इम्प्लांट्स। देन वी हैव सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मिसलेनियस, अदर छोटे मोटे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। नेचुरल मेथड्स। परमानेंट मेथड्स में वी कैन हैव ट्यूबेक्टमी और वी कैन हैव वैसेक्टमी। और वैसेक्टमी, राइट? सो इनके ऊपर एक एक दो बातें, बस ज्यादा नहीं हम बात करेंगे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स ये काफी हद तक आपका ऑब्जन गाइनी में भी कवर हो जाएगा, बट स्टिल एक एक दो बातें अबाउट ईच वन ऑफ देम। व्हाट आर द बैरियर मेथड्स? नेचुरल मेथड तो बेटा नेचुरल हो गया, एब्स्टिनेंस एंड विड्रॉल मेथड, कैलेंडर मेथड, ये सारा। सो बैरियर मेथड्स में आ गया कॉन्डम्स। बेटा कॉन्डम्स दो हो सकते हैं, वी कैन हैव मेल कॉन्डम और ए फीमेल कॉन्डम। जो मेल कॉन्डम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ, फर्स्ट एमसीक्यू, दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स। जो फीमेल कॉन्डम है ये लेटेक्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथीन, बट दोनों अवेलेबल होते हैं। वी कैन हैव पॉलीयूरेथीन कॉन्डम्स
or latex. Latex is a much better material. It is more tougher material, stronger material, and latex condoms are what are available in India as well in female condoms, right? ये जो condoms हैं इसके ऊपर सवाल आता है. Condoms are like ये देखे तो सबने होंगे, मतलब फीमेल कॉन्डम्स कैसे होते हैं, उसके अंदर ना दो रिंग्स होती हैं बेटा. एक इंटरनल रिंग होती है और एक एक्सटर्नल रिंग होती है. जो एक्सटर्नल रिंग है, एक्सटर्नल रिंग, ये बेकार सा सिली एमसीक्यू, नॉनसेंस एमसीक्यू मैं कहूंगा. व्हाट इज एक्सटर्नल रिंग? ये ओपन होता है या क्लोज होता है? बस ये बेकार सा सवाल आता है. एक्सटर्नल रिंग इन अ फीमेल कॉन्डम, इट इज ओपन और क्लोज. कॉमन सेंस, इट्स अ सिली स्टूपिड एमसीक्यू. इट इज ओपन बेटा. क्लोज होगा तो फिर इंट्रोकोइटस मतलब कैसे होगा ना, इंटरकोर्स कैसे होगा? इंटरनल रिंग कैसी होती है? इंटरनल रिंग कैसी होती है? ओपन होती है, क्लोज्ड होती है? इट इज ओपन और क्लोज्ड. इंटरनल रिंग इज ऑब्वियसली क्लोज, नहीं तो कोई बात ही नहीं बनेगी, कॉन्ट्रासेप्शन ही नहीं होगा अगर ये भी ओपन हो गया. सो जो सेमेन है वो इसके अंदर पड़ा होता है. ओके, सो ये किसको कवर करती है? इंटरनल रिंग. इट covers what part of the female? Internal ring will cover the cervix of the female. Internal ring will cover the cervix of the female. And common sense ही बात है, which is better material? It is latex material. So ये एक सवाल आता है that condoms are more important for what? For preventing pregnancies. अगर प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी को, विच इज बेटर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, द मेल और द फीमेल? क्या बोलना चाहते हो? या दोनों सेम है, मेल या फीमेल? व्हाट इज द यूज? इनका यूज मैं लिख रहा हूं ना, यूज इज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज. विच इज बेटर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, मेल और फीमेल और सेम? बेटा कॉन्डम तो कॉन्डम ही होता है, दोनों सेम फंक्शन होते हैं, कोई फर्क नहीं होता. कॉन्डम तो कॉन्डम ही है ना? सो इसमें कोई फर्क ही नहीं होगा. अगर अगर नेक्स्ट एमसीक्यू, अब सवाल आता है कि अगर इनहिबिट करना है एसटीडीज को. एसटीडी क्या होते हैं बेटा? एसटीडी आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. अगर सवाल आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना है तो कौन ज्यादा बेहतर होगा, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम? कौन ज्यादा होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मेल कॉन्डम और फीमेल? बेटा लिखो, कॉन्डम तो कॉन्डम ही होता है यार, तुम इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? सेम ही होना चाहिए ना. सो कॉन्डम तो कॉन्डम है, सेम आंसर अगेन. वेरी नाइस. सो चाहे प्रिवेंशन प्रेगनेंसी की हो, चाहे प्रिवेंशन एसटीडी की हो, इट हैज टू बी सेम. सो यही क्वेश्चंस आते हैं, यही गलतियां सब लोग करते हैं. ये ऐसा नहीं है कि आपने गलत किया है. सो आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि सेम तो कॉन्डम ही होता है, तो ये सेम गलतियां हर बच्चा करता है. सो प्लीज नोट दैट अगर मेल है चाहे फीमेल है, कॉन्डम इज a barrier method. It will prevent pregnancy and STDs both, and both are equally efficient in preventing this. इसके अलावा we also have, one is condoms, we also have other barrier methods like diaphragms हो सकते हैं, diaphragms हो सकते हैं, और we can have cervical caps, but these are not used under National Family Planning Program. They are not used under National Family Planning Program. हमारे पास सिर्फ condoms आते हैं मेल एंड फीमेल, राइट? नेक्स्ट आता है ओसिपिल्स. ओसिपिल्स क्या होती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. बेटा ये साक्षी मैम, डॉक्टर साक्षी ने मिडवाइफरी, ऑब्स गाइनी मिडवाइफरी के अंदर बहुत तरीके से, आई वुड से, एंड बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ओसिपिल्स का पूरा डिस्कस करेंगी वो अपने लेक्चर्स के अंदर, जहां पे दे विल आल्सो टीच यू लाइक ओसिपिल्स कब शुरू करनी चाहिए, मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए, एंड ये सारा कुछ वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारे पास, मैं सिर्फ आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ. ओसिपिल्स बेटा दो किस्म की आती हैं हमारे पास. वी हैव इज द माला एन और वी हैव इज माला डी. ये दो होती है, माला एन या माला डी. माला एन याद रखो, नेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट. माला डी याद रखो, दुकान पे मिलेगी या डिलीवरी के लिए मिलेगी, तो इसकी कुछ स्मॉल कॉस्ट होती है, एंड ये होम डिलीवरी करती हैं.
जो आशा वर्कर्स होंगी ना, दे विल डू होम डिलीवरी ऑफ द माला डी टैबलेट्स। तो माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, माला डी जो है वो जो है होम डिलीवरी के लिए यूज होता है, याद कर लो। ये जो ओसिपिल्स हैं बेटा, इनके अंदर क्या होता है, बोथ, चाहे माला एन हो चाहे माला डी हो, दे बोथ विल कंटेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों होंगे इसमें, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट। सो ईस्ट्रोजन कौन सा होता है, एथिनाइल एस्ट्राडायोल एट द रेट ऑफ 0.03 मिलीग्राम्स। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा होता है, इट इज लेवोनॉर्जेस्टेरॉल at the rate of 0.15 milligrams. So they both contain ethinyl estradiol. ये दोनों में होता है बेटा, ये दोनों में होता है, माला डी चाहे माला एन। They contain ethinyl estradiol at the rate of 0.03 milligram in one tablet, plus they contain levonorgestrel 0.15 milligram. And ये दोनों plus they will also contain iron tablets. Iron tablets. These are ferrous fumarate tablets. These are ferrous fumarate tablets, iron tablets. 7 iron tablets होती हैं and 21 hormonal tablets होती हैं. 21 hormonal tablets, which hormones? They contain ethinyl estradiol plus levonorgestrel and 7 iron tablets, ferrous fumarate tablets. ये ओसिपिल्स में होता है, right? नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर आईयूडीज। थर्ड आते हैं व्हाट आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑब्स एंड गाइनी मिडवाइफरी पॉइंट ऑफ व्यू, आईयूडी इट इज 10 स्टार एमसीक्यू। वेरी फ्रीक्वेंटली बेटा आईयूडी के ऊपर सवाल आता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के ऊपर सवाल आता है आईयूडी। सो 10 स्टार एमसीक्यू आईयूडी, इसको थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। पहला सवाल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईयूडीज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईयूडीज। टाइप्स ऑफ आईयूडीज वी हैव फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इनको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ आईयूडीज। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट आईयूडीज। जो सेकेंड जनरेशन है दैट इज कॉल्ड एज कॉपर टीज, एंड थर्ड जनरेशन दीज आर हॉर्मोनल आईयूडीज। जो इनर्ट आईयूडीज हैं इनका नाम बस एक ही नाम पता होना चाहिए, लिपीज लूप। लिपीज लूप। जो कॉपर टी है बेटा, इट कैन बी कॉपर टी, बहुत सारे हो सकती हैं कॉपर कंटेनिंग। कॉपर टी 200, कॉपर टी 220, नोवा टी। We also have a copper 375. We also have a copper T380A device. ये बहुत सारे हैं इसमें। इनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ जाए तो कॉपर 375 एंड कॉपर T380A याद रखो। These are the only two IUDs which are available in Government of India. They are available under the National Family Planning Program, copper 375 and copper T380. जो हार्मोनल आईयूडीज हैं, दे आर नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट हार्मोनल्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. Yes, very nice beta Mona Lisa. That hormonal could be of two types. We can have Mirena or we can have Progestasert. We can have Mirena or we can have Progestasert. MCQs on this Mirena beta. Mirena contains what? इसके अंदर क्या होता है? It contains levonorgestrel. Progestasert में क्या होता है? It contains a natural progestin. It contains a natural progestin. Mirena कितना secrete करता है? Point number 2, कितना secrete करता है? It secretes at the rate of 20 micrograms per day, whereas Progestasert secretes at the rate of 65 micrograms per day of natural progestin. Mirena का एक बहुत बड़ा advantage है. What is the advantage?
इसका एडवांटेज है इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years एंड इट हैज लोएस्ट फेलियर रेट. इट हैज लोएस्ट फेलियर रेट. याद है आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था फेलियर रेट आईयूडीज का कितना होता है? याद है अभी 5-10 मिनट पहले पढ़ा था. व्हाट इज द फेलियर रेट ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस? कितना था? अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने. व्हाट इज द फेलियर रेट ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस? 0.7 to 1.5 है ना, यही था ना, 0.7 to 1.5. तो मिरेना का कितना होता है? मिरेना इज द ओनली वन, प्लीज राइट डाउन, इट हैज अ फेलियर रेट ऑफ 0.3 फेलियर रेट. तभी तो हम इसको लिखते हैं दैट इट हैज द लोएस्ट फेलियर रेट. It has the lowest failure rate of 0.3, which is much lower than anybody else. Generally 0.7, 0.9, 1, 1.2 ये failure rates होते हैं. जो प्रोजेस्टा सर्ट है इसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है. इसका डिस्टिंक्ट एडवांटेज है बेटा, इसकी जो लाइफ है ये कितनी देर के लिए? 1 year के लिए. बट इसका एक और डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, इट हैज द लोएस्ट एक्सपल्शन रेट. इट हैज द लोएस्ट एक्सपल्शन रेट. सो ये तो बात रही आपकी मिरेना और प्रोजेस्टा सर्ट की. 3 सवाल आते हैं अबाउट व्हाट इज मिरेना एंड व्हाट इज प्रोजेस्टा सर्ट. नेक्स्ट, कई दफा एग्जामिनर्स ये भी पूछते हैं व्हाट इज कॉपर टी 375 एंड कॉपर टी 380. अगर इन दोनों को सुने, व्हाट इज कॉपर 375 एंड कॉपर टी 380A एंड कॉपर 375. What is the shape of this? What is the shape of this? What is the shape of a copper T380A? It is a T-shaped structure. What is the shape of copper 375? फटाफट से लिखो, what is the shape of a copper 375? क्या बोलना चाहते हो? कॉपर 375 की शेप कैसी होगी? 375 कॉपर 375, it is not a T shape, it is inverted U-shaped device. It is inverted U-shaped device. जो T है ना, आपने ध्यान से अगर देखा होगा, कैन यू सी यहां पे आई हैव रिटन कॉपर T, यहां पे देर इज नो T. कैन यू सी दिस? देर इज नो T ओवर हियर. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ए T शेप डिवाइस. अगर आपने गलती से बाई चांस आपने T लिख लिया हो तो इसको डिलीट कर देना. इट इज नॉट अ कॉपर T375. दिस इज रॉन्ग. It's not a copper T375, it's a copper 375. It is also known as a short-term IUD. It is also called as a short-term IUD and a multi-load device. Whereas the copper T380A, it is called as a long-term IUD. Long-term IUD and short-term IUD. Why do we say long-term? इसकी life कितनी है? Life is for 10 years, whereas the short-term IUD, the life is for 3 to 5 years. Single best answer 5 years के लिए होता है. So single best answer is for 5 years and long-term IUD is for 10 years. Next, point number 3. अगर आप copper T380A को देखें, so how will it look? It will look something like this. यहां पे बेटा देर इज अ थ्रेड विच विल हैंग. एक थ्रेड हैंग कर रहा होगा, थ्रेड विच विल हैंग. इसके ऊपर यहां पे देर इज कॉपर ऑन दिस, कॉपर यहां पे, कॉपर ऑन दी आर्म्स. बिकॉज इट हैज कॉपर ऑन दी आर्म्स, दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ कॉपर T380A. ए क्यों बोलते हैं? ए इज बिकॉज ये कॉपर जो है ये आर्म्स पे होता है, राइट? बोथ आर्म आर कवर्ड बाय कॉपर. इसमें व्हाई डू वी से 380? 380 is the surface area of the copper. Surface area in millimeter square. Surface area of copper in millimeter square. Right? ये next MCQ, ये जो thread है ये किस चीज का बना होता है? Thread is made up of polyethylene and it is a white color thread. It is a white color thread made up of polyethylene, white color thread. On the other hand, अगर आप copper 375 को देखें बेटा, if you look at the copper 375, the copper 375, it is inverted U-shaped device. It is inverted U-shaped device with a thread which is hanging around.
एंड इस यू शेप डिवाइस में यहाँ पे इसके आर्म्स ऐसे कर्व्ड होते हैं, यू शेप्ड है ना, and they have these finger like projections. What are these called as? These are called as spurs. इनको क्या बोलते हैं? स्पर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. एंड यहां पे इसके कॉपर कहां होता है? कॉपर इज ओनली ऑन द स्टेम. कॉपर इज ओनली ऑन द स्टेम. सो ओनली ऑन द स्टेम, कॉपर ओनली ऑन स्टेम. कॉपर इज ओनली ऑन द स्टेम. ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड किससे बना होता है? इट इज अ नायलॉन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, एंड इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर. ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करे अभी हमने इसके टाइप्स के ऊपर, इसके लाइफ स्पैन, कॉपर 380, 375, क्या क्या चीजें हैं. मोनालिसा कह रही है कॉपर कंटेन्स नो, रेडियो ओपेक कंटेन्स बेरियम सल्फेट. ना, बेरियम सल्फेट नहीं होता बेटा. ऑल कॉपर डिवाइसेस दे कंटेन बेरियम. Nova T is the only one. Nova T is the only one which contains silver core. Nova T is the only one which contains silver core. बाकी सब में बेरियम होता है, right? So Nova T contains silver. और ये आप लिख लीजिए. सर ब्लू क्यों होता है? ब्लू रखा है हमने, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर. बस वैसे ही रख दिया तो रख दिया. अगर पिंक रखते फिर आपने पूछना पिंक क्यों होता है. अब रख दिया तो रख दिया, कलर है भाई, हमारे को पसंद है ब्लू कलर, तो हमारी ये सरकार की मर्जी चलती है. उन्होंने लिख रख दिया तो रख दिया. That's how the company has made it. Okay, so that easily recognize हो जाए. वैसे तो it's blue color because easy recognition होता है. और Nova T is the only one which has silver core. बाकी सब में everybody contains barium. बेटा आप में से एक स्टूडेंट ने ना बोला था कि शायद बेरियम होता है कॉपर 380A में. कॉपर हर एक में बेरियम होता है. एवरी कॉपर टी, एवरी आईयूडी कंटेन्स बेरियम एक्सेप्ट Nova T. Nova T contains silver core. Nova T contains what? Nova T contains silver core. All IUDs contain barium except Nova T. Nova T contains silver core. Okay. बस यही है. That is regarding the first topic. What are the types of IUD? ये आपने क्या किया? What are the types of IUD? एक स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था. एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद हार्मोनल आईयूडीज. बेटा हार्मोनल में प्रोजेस्टेरॉन होता है ना. प्रोजेस्टेरॉन जो है ये ट्यूब्स, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उनकी मोटिलिटी को डिले कर देती है, धीमी गति कर देती है. सो अगर फैलोपियन ट्यूब, जैसे ये मान लो यूट्रस है किसी का, इफ दिस इज द यूट्रस ऑफ ए फीमेल, सो ये सर्विक्स है, विजाइना आ गया, तो ये अगर आप फैलोपियन ट्यूब्स का मोटिलिटी को स्लो कर दोगे तो यहां से जो ओवा आ रहा है वो ओवा फैलोपियन ट्यूब में रह जाएगा. बाई चांस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यहां पड़ा था तो वो स्पर्म को रोकता है. वैसे इन केस स्पर्म अंदर आ जाता है तो इम्प्लांट ये यहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा इन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज. तो इसलिए बेटा ये बोला जाता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ओनली मतलब सिर्फ, इट इज ओनली एसोसिएटेड विद हार्मोनल. अगर हार्मोनल के अंदर देखोगे इट इज एसोसिएटेड विद ओनली प्रोजेस्टासर्ट. मिरेना में नहीं होती एक्टोपिक, बिकॉज वो बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है. फेलियर रेट ही बड़ा कम है ना उसका. सो इट डज नॉट अलाउ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी टू हैपन. प्रोजेस्टासर्ट का फेलियर रेट ज्यादा है और अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो एक्टोपिक होती है. डिड यू गेट दिस पॉइंट? So more prone is ectopic pregnancies, hormonal IUDs. चलो next point, point number two in intrauterine devices. आपने पहली बात क्या करी? We talked about the types of IUDs. Next हम बात करते हैं what are the mode of action of IUDs. Mode of action क्या बोलना चाहते हो? लिखो जरा चैट बॉक्स में क्या बोलना चाहते हो.
that what is the mode of action of IUDs? It inhibits. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लिखो मत इसको, क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए, it inhibits. Option A, implantation. It inhibits fertilization. It inhibits ovulation. क्या मार्क करना चाहते हो? कौन सा मार्क करना चाहते हो? It inhibits implantation, fertilization, ovulation. It inhibits fertilization, implantation, both. ये sperm को ही नहीं ना घुसने देता. Very nice. It inhibits. प्राइमरी आंसर अगर इनमें से एक मार्क करोगे, एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ यू वांट टू मार्क सिंगल बेस्ट आंसर, if you want to mark single best answer, the best answer over here is fertilization. It is going to inhibit. Fertilization is the main mode of action of intrauterine device. Very nice. Point number 3. What are the side effects of IUDs? What are the side effects of IUDs? The side effect of IUDs are pain, bleeding, bleeding. We can also have, in certain cases, perforation. Thread लटक रहा होता है, तो that can lead to pelvic inflammatory disease, PID. Pelvic inflammatory disease, perforation. We can have PIDs. We can also have ectopic pregnancies. Ectopic pregnancies. These are all side effects of intrauterine devices. अगर सवाल पूछे, which is the most common reason for removal of IUD? Which is the most common side effect reason for removal of IUD? Pain. Absolutely correct. Which is the most common reason for removal of IUD? It is pain. What is the most common side effect in sub mein se? Which is the most common side effect? Pain or bleeding? Most common side effect is bleeding. Absolutely correct. Which is the most common? It is bleeding. Right? So ये side effects हो गए. Last point आते हैं. What are the contraindications of IUD? What are the contraindications of IUD? नोवाटी हेक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ नहीं है बेटा. नोवाटी कंटेन सिल्वर कोर, बाकी सब में बेरियम है. बस ये रटने वाली बात है. कैंसर भी हो सकता है. नहीं, कैंसर नहीं होता है आईयूडी लगाने से. आईयूडी से कैंसर नहीं होता. What are the contraindications of IUD? क्या बोलना चाहते हो? What are the contraindications of intrauterine device? Contraindications will be current or ongoing PID, pelvic inflammatory disease. Second, it is, please note, ectopic pregnancy is not a contraindication. Current ongoing PID या फिर genital malignancy या फिर any anatomical malformation or anatomical defects in uterus or cervix, uterine anatomical defects, genital malignancies, current ongoing PID. Fourth is any undiagnosed vaginal bleed, undiagnosed vaginal bleed. All these are contraindications of intrauterine device. Of course, one is suspected pregnancies also. Suspected pregnancies are also the contraindications of intrauterine devices. So इसके ऊपर काफी सारे सवाल आते हैं. What are the indications, contraindications of intrauterine devices? Undiagnosed vaginal bleed. Please note, ectopic, इसको बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखो. Ectopic pregnancy is not a contraindication for copper T device. Why? Because copper T में होता ही नहीं है ectopic pregnancy, right? ऐसा क्यों होता है कि आईयूडी के बाद भी फीमेल्स प्रेग्नेंट? बिकॉज नथिंग इज 100% फुल प्रूफ ना. 0 चांस तो कहीं भी नहीं होता बेटा. इसीलिए तो आप फेलियर रेट पढ़े हो. ऐसा थोड़ी ना कि कॉन्डम लगाया तो कोई फेलियर रेट नहीं होगा. देयर आर सो मेनी पॉइंट्स अबाउट फेलियर रेट. ओके,
सो दैट इज अबाउट द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. एक और पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 5, दैट इज व्हेन डू वी इंसर्ट आईयूडीज. व्हेन डू वी इंसर्ट आईयूडीज, आप इंसर्ट कब करते हैं? व्हेन डू वी इंसर्ट आईयूडीज? इंसर्शन ऑफ आईयूडी कब करते हैं बेटा? व्हेन डू वी इंसर्ट आईयूडीज? व्हेन डू वी इंसर्ट आईयूडी? Insertion of IUD in a normal female, it is done within 10 days of start of menses. Very nice. Very nice. It is done up to Ashrita. Very good. Suryakant, it is done within 10 days of start of menses. And of course, in post delivery, when do we insert it? अगर आप आईयूडी को इंसर्ट करेंगे विद इन 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, विद इन 10 मिनट्स, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? पोस्ट प्लासेंटल आईयूसीडी इंसर्शन. अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमने आईयूडी लगाई, इट इज called as post placental IUCD insertion. If it is given after 10 minutes but within 48 hours, this is called as postpartum IUCD insertion. This is called as postpartum IUCD insertion. After 48 hours, beta, after 48 hours, we do not insert IUCD. When can we insert it? After some time, it is called as, it is after 42 days of delivery or 6 weeks. एक ही बात हुई ना, 42 days और 6 weeks. उसके बाद जब हम डालते हैं, it is called as interval IUCD insertion. It is called as interval IUCD insertion. So ये याद रखो, when to insert it. When do we have post placental? It is done within 10 minutes. When do we have postpartum? Within 48 hours. And when do we call it as interval? If it is done after 6 weeks of IUCD, 6 weeks of delivery. So ये time of insertions है, very frequently asked in your exam about the time of insertion of IUCD. Time of insertion of IUCD. Right? ठीक है जी. So ये आपने कुछ टॉपिक्स बात करी about intrauterine device, very frequently asked. Intrauterine device, it is a 10-star MCQ. Next in line, काफी दफा पूछते हैं, what are the various injectables we have? What are the injectables that are there in the contraceptive topic? Sir, 48 का क्या बोलेंगे? Interval. After 48 hours, 42 days, after 6 weeks, it is interval. Within 48 hours, it is PPIUCD, postpartum. PPIUCD. What is postpartum IUCD? Within 48 hours. Within 48 hours. So आपका IUD जो है, that is point number 3. Point number 4. What are injectables? Injectables बेटा दो टाइप्स के होते हैं. We can have DMPA, depo medroxy progesterone acetate, depo medroxy progesterone acetate, DMPA. DMPA is given as DMPA का brand name जो है, that is Antra. Antra is available under National Family Planning Program. It is available under National Family Planning Program, Antra injections. This Antra injection, it contains what? It contains progesterone injections. These are medroxyprogesterone acetate. It is given at the rate of DMPA at the rate of 150 milligrams. It is given 3 monthly injections. It is given 3 monthly injections. हर 3 महीने बाद ये फीमेल को इंजेक्शन लगता है डीएमपीए का. इसमें सवाल आता है कि अगर एक फीमेल ने, मान लो आज है हमारे पास 8 मई, अगर किसी ने 8 मई को इंजेक्शन लगवाया, वो नेक्स्ट ड्यू कब होगा? नेक्स्ट कब वो आएगी फीमेल? अगर किसी ने 8 मई को इंजेक्शन लगवाया तो कब आएगी? मई
8 मई से मई जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त। सो ये फीमेल आएगी 8 अगस्त को। लेट अस से वो 8 अगस्त को बोलती है कि मेरे तो बहन की शादी है, मैं नहीं आ सकती 8 अगस्त को, तो अब वो कब आएगी? क्या बोलना चाहते हो, पहले आए या बाद में आ जाए? क्या बोलोगे? पहले आए? कितनी पहले आए? कितनी पहले? कितनी पहले? एक हफ्ता, 2 दिन पहले, 5 अगस्त को? वो कहती 5 अगस्त को भी नहीं आ सकती, 5 अगस्त को लेडी संगीत है। वो 5 अगस्त को भी बिजी है ना, उसके लेडी संगीत है घर में, बहन की शादी है अगले के। 1 वीक पहले वो बेटा शॉपिंग के लिए जा रही हो, तब भी नहीं आ सकती। तो वो कब तक आ सकती है, या वो बाद में भी आ सकती है? अगर वो कहती पहले तो मैं बिजी बिजी हूं, अब क्या करें? वही तो, आफ्टर कितनी देर बाद बुला लें? बाद में भी आ सकती है, कितनी देर तक? यही सवाल आता है बेटा, ये ड्यू डेट से कब तक आ सकती है? जाओ बच्चे पैदा कर लो फिर। नहीं नहीं, सरकार है बेटा, आप लोग सरकार हो, अमन कुमार आप सरकार हो, आपको तो NRR 1 चाहिए ना। NRR 1 के लिए आपने बोला था ना TFR 2.1। TFR 2.1 के लिए कपल प्रोटेक्शन रेट 60%। सो फिर क्या करें अब? आफ्टर 1 मंथ तक आ सकती है, वेरी नाइस। सो प्लीज याद रखें कि जो उसकी ड्यू डेट है, जो भी उस फीमेल की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से शी कैन कम 2 वीक्स बिफोर या 4 वीक्स आफ्टर। इतना लंबा टाइम होता है इसका, इसके अंदर वो कभी भी आ सकती है। जल्द से जल्द आओ, ये नहीं हो सकता जल्द से जल्द आओ। सरकार है, सरकार ने कोई नंबर बोलना होता है, ऐसे जल्द से जल्द आओ वो तो फिर 2 साल बाद आ जाएगी ठहर के कि लो जी 4 बच्चे हो गए आपके चक्कर में। सो ड्यू डेट से पहले बेटा 2 हफ्ते पहले एंड 4 हफ्ते के बाद तक आ सकती है। So 2 weeks before and 4 weeks after, 2 weeks before and 4 weeks after, ये female eligible है to get the DMPA, and there is no need to do यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, नो नीड टू डू यूपीटी। अगर वो इस दौरान आ रही है, इसके बाद आ रही है, देन वी हैव टू डू यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, गिव ऑल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्शन एंड देन कैरी ऑन। सो प्लीज नोट, ये सवाल आ सकता है कब तक वैलिड होता है? इट इज 2 weeks बिफोर until 4 weeks after the due date. Next, एक और injectable available है, we have DMPA. Another injectable which is available, it is called as NET-N. Another injectable which is available we have is NET-N. फटाफट से करें, 5-10 मिनट में we have to finish off the whole topic because हमने next हेल्थ केयर सिस्टम भी करना है। सर कितनी पेमेंट दिया? इसमें कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होती, इसमें इंजेक्शन में कोई पेमेंट नहीं है। 100 रुपए कहीं नहीं देते बेटा, ये उधर पे होगा, कुछ स्टेट्स में दिया जाता होगा, बट ये सिर्फ स्टेट वाइज है बेटा, यूपी में देते होंगे। इट्स नॉट गिवन एज नेशनल प्रोग्राम, नो, इट इज नॉट गिवन एज नेशनल प्रोग्राम, इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द नेशनल प्रोग्राम। यूपी में 100 रुपए देते होंगे वो, जस्ट टू, बिकॉज यूपी इज अ वेरी हाई बर्डन स्टेट ना। TFR कितना है यूपी का, आपको पता है? TFR कितना है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का TFR इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, इट इज 4.2। 2 बच्चे को कहां पैदा करने हो तो 4-4.5 से नीचे नहीं होता। सो इट इज वेरी हाई। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल, another injectable that is NET-N. NET-N, what is NET-N? Norethistron enanthate, norethistron enanthate। ये NET-N कितना दिया जाता है? इट इज गिवन एट द रेट ऑफ 200 मिलीग्राम एंड इट इज गिवन 2 monthly injections, 2 monthly injections. Please note, ये DMPA can also be given as subcutaneous injections. अगर इंट्रामस्कुलर नहीं लग रहा तो वहां पे डोज लो डोज हो जाती है, 104 मिलीग्राम्स का ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है। अगर सबक्यूटेनियस लग रहा है तो इट इज 104 मिलीग्राम्स, अदरवाइज इट इज 150 मिलीग्राम्स। NET-10 is 200 milligrams given 2 monthly. It is not available in government of India. It is not given in government of India. 200 milligrams 2 monthly injections. ये injectables हो गए। Then is some other contraceptives. Other contraceptives में बेटा एक तो हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं,
एक तो इम्प्लांट्स होते हैं, इम्प्लांट्स में बस आपको नाम याद करने हैं। नॉर प्लांट होता है, इम्प्लेनॉन होता है, इम्प्लेनॉन होता है, नॉर प्लांट। एमसीक्यू बस इसमें एक आधा ही आता है। नॉर प्लांट का मटेरियल क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ सिलास्टिक, सिलिकॉन एंड प्लास्टिक। इसको कहते हैं सिलास्टिक मटेरियल का बना होता है और ये रॉड्स में होता है। इम्प्लेनॉन के ऊपर एक ही सवाल आता है, इट इज वन कॉन्ट्रासेप्टिव विच हैज द लोएस्ट फेलियर रेट। याद है हमने किया था ना, इम्प्लांट्स हैव द लोएस्ट फेलियर रेट, सो इम्प्लेनॉन हैज द लोएस्ट फेलियर रेट. Implanon will have the lowest failure rate. Norplant is made up of a material called as silastic material. Okay. Next is another contraceptive, that is Chaya. Chaya. What is Chaya, beta? What is Chaya? Chaya कौन सा contraceptive है? Is it available in government of India? Yes, it is made up. It is available in government of India. It is Chaya is containing active chemical कौन सा होता है इसमें? और meloxifene or meloxifene. It is also available. It is available by the brand name of Chaya, which contains Centroman. Centroman. ये बेटा सेंटक्रोमैन मेल टैबलेट है या फीमेल है? किसने खानी होती है? ये मेल है या फीमेल है? फीमेल, बिल्कुल ठीक है। ये मैन के पीछे नहीं जाना, इट इज अ फीमेल टैबलेट। ये छाया, इसका पुराना नाम बेटा सहेली था, तो आप याद कर सकते हो छाया इज अवर न्यू सहेली। ओके, इसको याद कर सकते हो दैट छाया इज अवर न्यू सहेली। छाया के अंदर होता क्या है? इट कंटेन सेंटक्रोमैन, एंड सेंटक्रोमैन के अंदर एक्टिव केमिकल कौन सा होता है? और मीलॉक्सिफेन। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेंटक्रोमैन, कैसे काम कैसे करती है सेंटक्रोमैन? इट इज अवेलेबल, काम कैसे करती है? इट इज अवेलेबल एज इट इज द वन विच इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. It is selective estrogen receptor modulator. Mode of action is selective estrogen receptor modulator, SERM. SERM होता है selective estrogen receptor modulator. और ये छाया टैबलेट्स हैं बेटा, ये किस डोज में खाते हैं? कितने डोज की छाया टैबलेट्स होती हैं? छाया टैबलेट्स, these are given at the rate of 100 milligram tablets and these are given as weekly tablets. इनको हम देते हैं बेटा बाय वीकली for 3 months and उसके बाद they are taken as weekly tablets. So initial to start with, start कैसे करते हैं? They are started as bi-weekly tablets for 3 months and then उसके बाद हम इसको weekly कर देते हैं. 100 milligram Centroman होता है इसमें and it is given as weekly tablets. Then once a week for 4 months. नहीं, 4 months जरूरी नहीं है. It can be taken for as long as we want. जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तब तक ये एज लॉन्ग एज वी वांट. राइट? या इट इज सेफ इन लैक्टेशन. इट इज सेफ इन लैक्टेशन. दैट इज करेक्ट. एंड नॉट इफेक्टिव इन पीसीओडी. पूरी गायनी बोल रहे हो. गॉसिपॉल एक थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी कर लो. चलो, वैसे तो एग्जाम में आजकल नहीं आता गॉसिपॉल, अब नाम लिया आपने. व्हाट इज गॉसिपॉल? राखी पूछ रहे हैं, व्हाट इज गॉसिपॉल? गॉसिपॉल बेटा, गॉसिपॉल एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इट इज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव. सीसी मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रासेप्टिव का. ओके, सीसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो ये गॉसिपॉल कैसे, क्या करना होता है गॉसिपॉल? इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. नेचुरल प्रोडक्ट. इट इज फ्रॉम ए चाइनीज कॉटन सीड. इट इज फ्रॉम ए चाइनीज कॉटन सीड. नेचुरल प्रोडक्ट होता है, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ये काम कैसे, मतलब क्या करना क्या है गॉसिपॉल का? खानी है, लगानी है, देखनी है, सूंघनी है, क्या करना होगा? मेल को क्या बोलोगे कि ये लो गॉसिपॉल, क्या करेगा वो?
देखेगा, सूंघेगा, लगाएगा, रखेगा, क्या करना है? खाना है। सो गॉसिपॉल बेटा मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट इज ओरल टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स होती हैं, ये टैबलेट फॉर्म में आता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इट कॉजेस, इट कॉजेस it inhibits spermatogenesis, and absolutely correct. What is the side effect? Side effect is it causes permanent एजोस्पर्मिया, परमानेंट एजोस्पर्मिया हो जाता है। याद रख लो, चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट है तो चलेगा तो पक्का चल जाएगा, नहीं चलेगा कोई दफा पड़ोसी की भी जरूरत पड़ जाएगी, परमानेंट एजोस्पर्मिया हो जाता है ये टेम्पररी मेथड है, बट चाइनीज प्रोडक्ट है, चले तो चले, नहीं तो पक्का चल जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, इट मे लीड टू परमानेंट इनफर्टिलिटी ऑल्सो, गॉसिपॉल। सो गॉसिपॉल हो गया, छाया हो गया, इम्प्लांट्स हो गया, दैट्स इट। एक और आता है बेटा, एक और आता है ये कि व्हाट इज टुडे, व्हाट इज टुडे, व्हाट इज टुडे? टुडे इज अ vaginal sponge. Today is a vaginal sponge. Yes, today is a vaginal sponge. And ये sponge जो है, it's not a, you can say it is not a actually a barrier method. Sponge कोई रोकेगा नहीं sperm को. Sponge is actually killing the sperms. So it contains a spermicidal called as nonoxynol 9. It is called as nonoxynol 9 vaginal sponge. So ये vaginal sponge फीमेल को कब रखना होगा बेटा? कब रखना होगा? बिफोर इंटरकोर्स, आफ्टर इंटरकोर्स, ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोर्स, क्या करना होता है? छाया ड्यू डेट क्रॉस होने 1 वीक तक हो सकता है। कितना पहले बिफोर इंटरकोर्स? ऑब्वियसली द फीमेल हैज टू कीप दिस बिफोर इंटरकोर्स till how much time? Till how much time? Till 6 hours. बिफोर 6 hours प्रायर नहीं ना हो सकता बेटा। रॉय या कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 6 hours बिफोर, इट इज नॉट बिफोर इंटरकोर्स बेटा। 6 घंटे पहले कैसे, इतनी लंबी प्लानिंग कैसे होगी? आफ्टर होगा ना। सो 6, इट इज गिवन बिफोर इंटरकोर्स, इट इज गिवन बिफोर इंटरकोर्स, इतनी लंबी 6 घंटे पहले कैसे? इट इज गिवन टिल 6 hours, इट हैज टू बी इंसर्टेड बिफोर इंटरकोर्स टिल 6 hours। एंड इन केस अगर फीमेल वो निकालना भूल जाए आफ्टर 6 hours, देन उस केस में, अब तुम सवाल आंसर ही ऐसे करने लग गए ना, थक तो तुम लोग गए हो, राइटिंग मेरी नहीं समझ आ रही, थक तो तुम लोग गए हो। इफ द फीमेल कीप्स इनसाइड, if the sponge stays inside for more than 12 hours, it may have the risk of toxic shock syndrome. It may have the risk of toxic shock syndrome, TSS, toxic shock syndrome. So that is the reason beta today vaginal sponge इंडिया में नहीं मिलता, ये सिर्फ आपके एमसीक्यू एग्जाम में मिलता है। पता नहीं क्यों सरकार पूछी जा रही है, बट टुडे वेजाइनल स्पॉन्ज 1990s में बंद हो गया था इंडिया में बनना, एंड आना भी बंद हो गया था। टुडे वेजाइनल स्पॉन्ज इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, एंड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल, पता नहीं क्यों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बार बार। It does not prevent STDs. That's what I was saying. It is not a very good barrier method. So bacteria grow karte hain. Yes, that is what is today vaginal sponge. That's all about these temporary methods and permanent methods में कुछ सवाल नहीं आता। permanent methods में कोई MCQ खास नहीं है। What are the permanent methods बेटा? Permanent methods could be tubectomy, or it could be vasectomy. It could be tubectomy or it could be vasectomy. Tubectomy
is what is the most common operative technique? इस कैसे करते हैं ट्यूबेक्टमी? What is the operative technique for tubectomy? It is modified Pomeroy's. It is modified Pomeroy's. And how do we do vasectomy? It is non-scalpel vasectomy. It is non-scalpel vasectomy, NSV, non-scalpel vasectomy. बेटा वैसेक्टमी के बाद what is the most important advice given to the patient? वैसेक्टमी के बाद what is the most important advice which is given to the patient? क्या एडवाइस देनी जरूरी होती है आफ्टर वैसेक्टमी? इजैकुलेट 10 to 15 टाइम, मतलब अगला बंदा ऑपरेशन करा के आया, हैवी लिफ्टिंग, यस यस दैट्स अ गुड आंसर कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 3 months. सो इंपॉर्टेंट एडवाइस इसमें ये होगी, सर ट्यूबेक्टमी मॉडिफाइड व्हाट? मॉडिफाइड ये बेटा ट्यूबेक्टमी यू विल लर्न वेरी नाइसली इन ऑब्स गाइनी मिडवाइफरी. बच्चे ये टॉपिक प्योर मिडवाइफरी का है, जिन्होंने पढ़ रखी है दे नो इट. पोमराइजेस जहां पे हम ना ट्यूब को ये किसने पूछा सर ट्यूबेक्टमी मॉडिफाइड व्हाट? स्वामी सरकार. स्वामी सरकार बेटा पोमरॉइज एक टेक्निक का नाम है, पोमरॉइज टेक्निक, जहां पे आप ट्यूबेक्टमी को कट लाइगेट करते हैं एंड देन यू कट इट, दैट इज पोमरॉइज. मॉडिफाइड इज मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कटिंग एंड लाइगेटिंग एंड यू स्टंप इट इन द ओमेंटल एरिया. सो ये स्टंप करके आप उसको गाड़ देते हैं सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ रिकैनलाइजेशन. अदरवाइज लाइगेशन एंड सिंपल कटिंग देयर मे बी रिकैनलाइजेशन. ओके, so that is what is modified Pomeroy's. That is what is modified Pomeroy's. So you have something like this and isko cut. Beautiful picture. Somebody showed the same picture. Ayushi. Same picture. So you cut ligate. यहाँ पे आप cut करते हैं and जो ये बच गए इसके ends, these ends are stumped. These ends are stumped. ये जो बच गए ये ends को भी stumping करते हैं. This is what is modification. So that is what is the best way, modified Pomeroy's. Vasectomy में what do we do in vasectomy? What is the most important post-op आपने advice क्या देनी है? That there is no heavy weight or no heavy weight till 15 days and use alternate contraception for approximately 3 months या 9 to 12 weeks or till 30 ejaculations. It is not 10 to 15 ejaculations, it is till 30 ejaculations or 3 months or 12 weeks and no heavy weight for 15 days. No heavy weight for 15 days. That is what is important in vasectomy. That is what is important in vasectomy.